from last 48 hours, a lot of you, because when I asked you, are you here in the Magic for the first time, and you said yes, so a lot of you have experienced this environment for the first time. Am I correct? So there's been a little less sleep? Little less? Yes, very less. A little untimely food? No? Yes? But these 3 days till now, I'm sure you had lots of learnings. Yes? Because these learning is something which you're going to take back and it's going to make you come on this stage one day. Am I correct? So my question to you is, do you want to be on this stage? I couldn't hear you. Do you want to be on the stage? I can't hear you. Do you want to be on this stage? We still have one more day, one more night, and we want to make sure that we make it the best ever magic you have had till this date. So I want you to, I want to make you prepare, because what is going to come next is not going to leave you only with excitement, it's going to leave you speechless. Because trust me, I am also nervous, I am also speechless, and I'm also thinking about words to talk about. Empty cup, Baba. Because I want you to hear me very carefully. When Magic was formed, there was only one thought, is that we want to give our best to you guys because we know that you have worked hard to be here. Everything which has been designed, thought, done in this event has been only done with keeping one thing in mind, is you. Every seat, even when you sit on, is tested that it should not break. Every food which you ate is being tasted so that it tastes good to eat. Every transport which you travel has been checked for the license, checked for the person. Every hotel you stay has been seen, observed. Everything we try and give our best. Because you actually deserve the best of things. And when you deserve the best, how can I think about allowing anybody to come up on this stage who is not the best in his league? Who is not only the best, but who is the bestest of best in his league? I know a lot of you are thinking, imagining, calculating, doing permutation and combination, but I'm sure you will not be able to judge that what can end up being on this stage sometime is unbelievable. And today that one unbelievable thing is going to happen here on Magic stage. Today, that one person is going to come up on stage who is going to make you believe that anything can happen if you believe in magic. Anything can happen if you believe in your dreams. Anything can happen if you are ready to die for your dreams. Because he is that one person who comes from a very humble background, who comes from a family like yours and mine, who has been a person like you and me sitting in the crowd, eating a food in a normal house, who has gone through the struggles like you and me have gone through. But the difference is he is that one person who decided to make the best out of the worst situations given. He is that one person
When I read, I studied, I went through his whole life history, I was not only proud to be even thinking about him, I was so mesmerized, I was so happy, and I was so impressed that I will have the pleasure to even shake hands with this person. Because he is epitome of success. He is epitome of facing challenges. He is an epitome of a person who believes कि अगर मैंने decide किया तो 1, 2, 3 क्या तो लाख challenges मैं ठोकूंगा और ठोकूंगा और ठोकूंगा और 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 बार ठोकूंगा. If I talk about his achievements, I don't have words, I don't have time enough, I don't have list enough because there are so many. There's so many. He has been recognized by Government of India as Padma Shri Award winner. He has been recognized by India as Arjuna Award winner. He has been there, one reason to get the World Cup of Cricket in India. He has been the biggest motivation to put the team together, to bring them together and be there when the World Cup was lifted together by the Team India. And I'm not going to call him up on stage just like this. Because he is the best, and the best deserves the best out of you guys. Are you ready to receive the best on the magic stage? Are you ready to give the best to the person who's a fighter, a warrior, and an incredible, unloving game cricketer of the Indian cricket team? Let me show you a little bit about him. Let me show you what this person is in reality. Can we have the video, please?
a heart, the person with a decision, and the person who knows what you are and who has come here because he believes that he is a dreamer and so are you. And I want to see the whole magic, each one of you. Give your heart and give your soul to help me welcome none other than Yuvraj Singh on stage. Settle down, guys. He has a lot to talk to you. And he can only once you settle down.
Do you want to hear him? So, okay, chalo, I'll give you one last chance, okay? One last chance, but then you have to allow him to talk after that, okay? So, one last chance at the count of 3. However loud you want to shout, shout at one last time for the man itself, Yuvraj Singh! He can't hear you! I gave you a last chance. Is that the best you can do, Magic? Is that the best we can welcome him? ओ भाई क्या खा रहे हो बैंकॉक में? सुबह खा के आए हो या इंडिया से खा के आए हो कुछ अलग? ऐसा लग रहा है कि बैंकॉक में क्रिकेट मैच खेलने आया हूं। इतनी पब्लिक तो मैच में नहीं आती जितने आप लोग आ गए हो आज। नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वादिका, खापकुन खाप, बैंकॉक। इंडिया में कोई लोग बचे हैं कि नहीं? सारे इधर आ गए हम। Thank you, Shipra, for your kind words. काश मैं आपके जैसे बात कर सकता। आई थिंक मेरे में वो फिनिश नहीं है ऐसे बात करने का, बट मैं तो बस आप लोगों की तरह आम आदमी हूँ। आई एम जस्ट लाइक यू गाइस।
बहुत से लोग बैंकॉक पहली बार ही आए हैं। एक आम आदमी के लिए विदेश आना बहुत बड़ी बात होती है। ये बात मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैं भी पहली बार विदेश गया तो मेरी भी फीलिंग ऐसी थी कि सुबह से शाम तक मेरी आवाज़ बंद नहीं होनी चाहिए दूसरे शहर में। आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सुना कि मालूम पड़ रहा है कि पहली बार आने में एक्साइटमेंट क्या होती है। मेरी भी कुछ एक्साइटमेंट ऐसी थी, जैसे मैंने अभी बोला कि जब मैं पहली बार गया तो या तो ऐसा लग रहा है कि मैं क्रिकेट मैच खेलने आया हूँ, या तो जब बॉक्सर मैदान में जाता है बॉक्सिंग करने के लिए, तो थोड़ा वैसा भी माहौल है। तो it's very overwhelming. I can't really say in a lot of words how I feel right now. So thank you very much for all your love and affection. बहुत इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, बहुत अच्छा लगा आप सब लोग को देखकर। आप लोग इतनी दूर आए हैं, आपकी एनर्जी, आपका एंथुसियाज्म, बहुत प्यार, शुक्रिया उस चीज़ों के लिए। आप सब लोग को 6 छक्के याद हैं? मैं कहीं भी जाता हूं और जब भी मैं देखता हूं लोगों को 6 छक्के देखते हुए, वो ऐसा लगता है कि आज ही मारे हैं। ऐसा लगता है कि वो फीलिंग कभी गई नहीं। आई थिंक वो जो रिकॉर्ड था, वो आज की डेट में उस चीज़ की वैल्यू मालूम पड़ती है। I'm sure आपको याद होगा जब इंडिया 2011 में हम वर्ल्ड कप जीते, उसकी भी वैल्यू आज पता लगती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ, कि अगर आप सुनना चाहें तो। आप भी काफ़ी छोटे शहरों से हैं, और आप भी एक दिन अपना कोई मुकाम हासिल करना चाहते हैं। आप भी एक बड़ा आदमी बनना चाहते हैं या सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, और आप भी अपनी आने वाली पुश्तों को दिखाना चाहते हैं कि आपने ज़िंदगी में कुछ सक्सेस पाई है, रिस्पेक्ट पाई है। पर उसके लिए बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। आपको जितने भी सक्सेसफुल प्लेयर्स हैं या सक्सेसफुल एक्टर्स हैं या लोग हैं, इतनी वो सक्सेस आज की डेट में वो आपको सक्सेस अच्छी लगती है, लेकिन उसके पीछे कितना सेक्रीफाइस है और कितने फेलियर्स हैं, वो एक इंसान ही समझ सकता है। जिस तरह की कठिनाइयाँ आप लोग गुजरते हैं अपनी लाइफ में, हम लोगों को भी उसी तरह की कठिनाइयाँ आई हैं। अभी से सेम तरीके का खाना खाते हैं, मैं भी सेम तरीके का खाना खाता हूँ। आप भी बिस्तर पे सोते हैं,
मैं भी बिस्तर पे सोता हूँ, कोई लोग नीचे सोते हैं। मैं भी बड़े साल बिना टिकट के ट्रेन में ट्रैवल किया है, बिना 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 बस टिकट के ट्रैवल किया है। छत पे बैठ के मैच खेल लेंगे हम अंडर 16 अंडर 14 का। सो जैसी आप लोगों की जर्नी है वेरी सिमिलर, मेरी भी वैसी जर्नी है। बट फ़र्क नहीं कहूँगा मैं, ऑब्वियसली कहीं समय बड़ा हूँ कहीं छोटा। मैंने कभी गिव अप नहीं किया अपनी लाइफ में। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी लाइफ का डिसीजन कोई और जना ले। ये ना खाओ, ये ना पियो, ये मत करो, वो मत करो। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं जिस तरह लोग मुझे बोलते थे मैं उस तरह ज़िंदगी जीऊँ। मैं ज़िंदगी जीना चाहता था अपनी टर्म्स पे, कि मैं कैसे अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं कैसे क्या हासिल करना चाहता हूँ, मैं कितनी मेहनत कर सकता हूँ और मैं क्या अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस कर सकता हूँ। एज इंडिविजुअल्स हम सब में लिमिटेशंस होती हैं, बट जो आदमी, इंसान, पुरुष अपनी लिमिटेशंस को क्रॉस करके आगे जाए, उसे अपना सही पोटेंशियल मालूम पड़ता है। थोड़े मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। थैंक यू। लव यू टू। नहीं, पढ़ना आता है, मेरे को पढ़ना आता है, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है हमस, मिक्स ग्रिल, चिकन बर्गर, पीटा ब्रेड। सॉरी, ये थोड़ा दोपहर का खाने का मेन्यू है। थोड़ा आपको बचाना चाहूँगा कि जब मैं छोटा था, तो काफ़ी छोटा, इससे भी छोटा, मेरे को क्रिकेट खेलने का बिल्कुल शौक नहीं था। मेरे को स्पोर्ट्स लाइक टेनिस, फुटबॉल और स्केटिंग, इन अलग स्पोर्ट्स का बड़ा शौक होता था। मुझे धूप में खेलना अच्छा नहीं लगता था, क्यों मुझे लगता था 6 घंटे धूप में कौन जाएगा यार। लेकिन एक दिन मेरे फादर वेट कर रहे थे कि आज नहीं, कल नहीं, कभी तो क्रिकेट खेलना शुरू करेगा। मेरे फादर इंडिया के लिए ज़्यादा खेल नहीं पाए, थोड़े गुस्से किस्म के इंसान थे, हैं अभी भी हैं, तो थोड़े एग्रेसिव थे, अभी भी हैं। तो उन्होंने मेरे को वो एकदम समझाया कि बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू क्रिकेट खेले। और मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा यह मानना है लाइफ में कि आपका जो बच्चा है या आप हो, आपको वो करना चाहिए लाइफ में जो आपका दिल करे, जिससे आपको खुशी मिले। हाँ, एक टाइम पे आई नो सबको अपना करियर बनाना है, बट आई थिंक हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और मेरे फादर की हैप्पीनेस सिर्फ वही थी कि मैं क्रिकेट खेलूं।
जिसमें मुझे अपनी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करना पड़ा। मैं एक दिन घर, ओ ये मेरे पिताजी पीछे देखिए, मिस्टर योगराज सिंह। भाग मिल्खा भाग देखी होगी आपने, भाग मिल्खा भाग देखी है आपने? तो उसमें मिल्खे को कैसे भगा रहे थे, कैसे भगाया मिल्खे को? अरे भाई जैसे मुझे भगाया है ना, मैं आपको बता भी नहीं सकता। तो एक दिन मैं एक रोलर स्केटिंग में 50 राउंड की रेस थी और मैं बड़ी अंडर 14 चैम्पियनशिप थी और मैं कोई 11 साल का था और मुझे याद है कि मैंने बड़ी मेहनत से वो 50 राउंड लगाए और मैं फर्स्ट आया। और मैं अपना गोल्ड मेडल लेके, सर्टिफिकेट लेके मेरे फादर मुझे रिसीव करने आए। तो मैंने अपने फादर को गोल्ड मेडल दिखाया। इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। आई वॉज 11 years old and I said, Dad, I won a gold medal today. So my dad said nothing. मुझे गाड़ी में बैठाया और जैसे ही हम स्केटिंग रिंग के बाहर निकल रहे थे तो दरवाज़ा खोला, मुझे नहीं फेंका, मेरे स्केट्स और गोल्ड मेडल को फेंक दिया और बोला कि आज के बहुत हो गया तेरा ये नाटक, आज के बाद तू सिर्फ क्रिकेट खेलेगा और सिर्फ क्रिकेट। और मुझे याद है कि मैं रोता रोता घर गया और लकीली मुझे अगले दिन गोल्ड मेडल मिल गया, किसी ने उठा के मुझे दे दिया। तो तब से मेरा क्रिकेट खेलना चालू किया। मेहनत करना बहुत मुश्किल था 11-12 साल की उम्र में, लेकिन मेरे फादर सुबह से शाम तक मुझे मॉनिटर करते थे। सुबह 6 बजे उठाते थे और बोलते थे भाग बेटा भाग, मिल्खा नहीं भाग, यूं भी भाग। तो बहुत मुश्किल लगता था। कई दिन मैं बहुत थक जाता था और मेरा उठने का दिल नहीं करता था। तो एक दिन लगा शायद कि मेरे फादर शूटिंग पे चले गए हैं और आज घर पे नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो घर पे ही थे, मुझे मालूम नहीं पड़ा। और जनवरी का महीना था तो मेरे कमरे में आया और मुझे उठने को बोला। और जनवरी के महीने चंडीगढ़ में बहुत ठंड होती है। मुझे बोला कि उठ बेटा। तो मैंने थोड़ी ना सुन कर दी बात, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था, मेरा उठने का दिल नहीं था। तो उन्होंने 3-4 मुझे बड़े प्यार से बोला दैट इट्स टाइम फॉर ट्रेनिंग, गेट अप गेट अप गेट अप बहुत करते थे, गेट अप गेट अप, कौन सन गेट अप। तो मैं नहीं उठा। 4 डिग्री का टेम्परेचर और बाहर धुंध, सूरज भी नहीं निकला था। ठंडे पानी की बाल्टी उठाई और मेरी रजाई पे डाल दी। मैं बड़ा चिल्लाता हुआ उठा और बाथरूम में भागा और गर्म पानी का गीज़र ऑन किया। आपको पता है 5-10 मिनट तो लगते ही हैं गर्म पानी आने को, और मेरी हालत काफ़ी ख़राब थी। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपने फादर को उनके सामने नहीं, मन ही मन में थोड़ा उल्टा सीधा बोला बाथरूम के अंदर कि क्या है ये, मतलब दिस इज़ टॉर्चर। बट रोते रोते बाहर गया, भागना शुरू किया, रोता रहा। मेरे फादर पीछे बाइक पे आ गए, फिर बोलते रहे रुकना नहीं, भागते रहो। तो ये सब चीज़ें आई थिंक लाइफ ने मुझे बहुत स्ट्रांग बनाया। सुबह से लेकर शाम तक मुझे प्रैक्टिस कराते थे और मुझे 1 घंटा मिलता था अपने दोस्तों को मिलने का शाम को। 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस। और रात को मेरे घर में गार्डन था, मम्मी ने अच्छा गार्डन बनाया था, गार्डन निकाल दिया और बोला, और सीमेंट का विकेट बना दिया कि रात को यहाँ पर गीली टेनिस बॉल से प्रैक्टिस करेंगे। और घर का एटमॉस्फेयर वाज ओनली सिर्फ क्रिकेट और मेहनत। तो एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर था और 1 घंटे से ज़्यादा हो गया। तो मुझे याद है मेरे फादर
को मालूम था मैं कहाँ अपने दोस्तों के साथ हैंग करता हूँ, वहाँ पर आए और जैसे ही मेरे बाप आया वैसे ही सब भाग गए मेरे दोस्त, और मैं अकेला खड़ा हुआ था वहाँ से। और मुझे बोला चल प्रैक्टिस का टाइम हो गया, तू लेट हो गया। तो माय फादर वाज लाइक ए हिटलर, सुबह से शाम तक प्रैक्टिस। हमारे घर में कोई हालात अच्छे नहीं थे। मेरे मेरे पेरेंट्स बहुत लड़ाई करते थे, और it was not a good environment for the house। तो वो बातें ना बहुत रह जाती हैं दिमाग में। मेरा छोटा भाई ने बहुत सफ़र किया, मैंने बहुत सफ़र किया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आप लोगों को भी कि फैमिली में ना एटमॉस्फेयर अच्छा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों पे आई एम श्योर यहाँ पे बहुत लोग हैं जिन पे ये चीज़ें इफेक्ट की होगी, फैमिली मैटर्स। सो आई फेल्ट के द डे आई गेट मैरिड, आई वांट टू क्रिएट अ गुड एटमॉस्फेयर फॉर माय फ्यूचर, फॉर माय किड्स। सो that was a big moment for me in my life। Anyways, उसके बाद obviously कभी मम्मी के पास, कभी पापा के पास lot of issues करते कराते बहुत से इश्यूज आए जिनके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकता बिकॉज इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। खेलता रहा, क्रिकेट का शौक पड़ गया, लेकिन क्रिकेट से कभी खुश नहीं था मैं, आज भी नहीं हूँ। शायद आपको एक दिन मालूम पड़ेगा क्यों, बट लेकिन मुझे किसी तरह अपनी खुशी ढूंढनी पड़ी। पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया, छोटा भाई मेरे फादर के साथ था, मैं अपनी मदर के साथ था। तो I got selected to play for India in 2000। मैंने अंडर 19 में बहुत स्कोर्स बनाए और अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते, मैच ऑफ द सीरीज हुआ, इंडिया के लिए कॉल हुई 2000 में। तो मैंने अपना करियर शुरू किया और मैंने अपना फर्स्ट चेक से अपनी मम्मी को घर लेके दिया। और आप भी जब अपना फर्स्ट चेक लेंगे तो आप क्या करेंगे? आप भी अपने घर वालों को देंगे ना, ये शॉपिंग में खर्च कर दोगे। गुड। तो मेरा करियर शुरू हुआ। इट वॉज अ सेंस ऑफ प्राइड फॉर मी कि मैंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और एक मुकाम पे पहुंचा। उसके बाद कभी टीम से अंदर बाहर ऑब्वियसली टाइम लगा सेटल होने में, मैच्योरिटी नहीं थी। इंडियन टीम का मेंबर बना, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेलने का मौका मिला। इंडियन टीम जब इंडियन टीम में सिलेक्ट हुआ तो 20 लोगों का कैंप था। मेरे कोच साहब अंशुमन गायकवाड़ हुआ था फर्स्ट कोच, तो उन्होंने सबको इंडियन टीम की कैप्स दी कि ये सब के लिए। तो मैंने कहा सर नहीं, जिस दिन 16 में सिलेक्ट होऊंगा उस दिन कैप डालूंगा। that was a feeling of pride कि मैंने लाइफ में कुछ हासिल किया। एज आई सेड, खेला वेला काफ़ी। हम 2002 में इंग्लैंड में जीते नेटवेस्ट फाइनल। दैट वाज आवर फर्स्ट विक्ट्री आउटसाइड इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आप लोगों को शायद याद होगा, मोहम्मद कैफ के साथ सौरव गांगुली कैप्टनसी में जी, दादा की कैप्टनसी में। उसके बाद 2007 में हम वर्ल्ड कप के पहले राउंड में क्वालिफाई नहीं किए। बहुत गाली पड़ी देश से। उनमें आप भी बहुत लोग होंगे, उन्होंने बोला क्या खेल क्या है। 2007 में बहुत गाली पड़ी। बहुत इश्यूज थे उस टाइम।
लेकिन ऑब्वियसली हाईलाइट नहीं कर सकता। उसके बाद टाइम निकला, यंग टीम आई, MS धोनी कैप्टन बने, और 2007 में हम T20 का वर्ल्ड कप जीते। लोगों का विश्वास अब वापस आया, लेकिन लोगों का विश्वास गया भी। तो उसके बाद काफ़ी T20 वर्ल्ड कप के बाद मेरे को काफ़ी इंजरीज आने लगी। मेरा नी टूट गया, मेरी उंगलियां टूट गई, और मुझे काफ़ी 6-7 इंजरियाँ हुई वर्ल्ड कप से पहले। फिर वर्ल्ड कप आया। वर्ल्ड कप में कुछ जगह पक्की नहीं थी, कुछ अंदर बात थी, लेकिन मैं बॉलिंग के साथ बहुत विकेटें ले रहा था। तो एक दिन मैं 2010 में मैं उठा, एक दिन रात को सोया हुआ था और मुझे खांसी आई बहुत ज़ोर से। उठा, बाथरूम गया, खांसी की, थोड़ा खून निकला। तो मैंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन अपने फिजियो को मिला, मैंने उसको बोला कि मुझे सांस की दिक्कत हो रही है, मुझे मैच में मुझे सांस की दिक्कत हो रही थी, मैं रन भाग रहा था, सांस नहीं आ रहा था। तो मैंने अपने फिजियो को बोला कि यार मुझे सांस नहीं आ रही है लेफ़्ट साइड से, मुझे दिक्कत हो रही है। तो हमारे डॉक्टर ने बोला कि आप चेक करा लो। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए तो फिर हम इंडिया जाके कुछ करते हैं, चेक वेक करते हैं। इंडिया गए, वर्ल्ड कप का कैंप शुरू हो गया। तो मैंने कहा मैं चेक वेक नहीं कराऊंगा, बिकॉज मुझे मालूम है कुछ तो गड़बड़ है। रहने देते हैं, अभी थोड़ा गेम पे फोकस करते हैं। वर्ल्ड कप खेले, इंडिया में वर्ल्ड कप था, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था। आप सब लोग की उम्मीदें थी हमारे ऊपर। आप लोगों की उम्मीदें थी कि भाई 28 साल हो गए, कभी तो वर्ल्ड कप लेके आओगे, इंडिया में है, जीतना पड़ेगा। तो प्रेशर कुछ ऐसा था कि इंडिया में ही जीतना है। और आई रिमेंबर कि मेरी सेहत काफ़ी ख़राब होती गई। मुझे कई कई मैचों में नींद नहीं आती थी, मेरे बहुत से इश्यूज होने लगे, बहुत सी खून की उल्टियाँ होने लगी, और मुझे लगा कि काफ़ी मामला ख़राब है। खेलते गए और वर्ल्ड कप में हमने अच्छा किया, हम वर्ल्ड कप जीते। और हम लोग 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीते, ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये ऐसा एक मोमेंट था हमारी, जब से हम छोटे बच्चे थे, एक स्पोर्ट खेलना, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। फ़ख्र लगता है उस चीज़ से। आज आप यहाँ सब लोग बैठे हैं, आपको भी फ़ख्र लगना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप मेरी बातें सुन रहे हैं, इसलिए कि आप भी कुछ बनने आए अपनी लाइफ में, और आप कुछ हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है मैजिक 2018। मैजिक 2018, ड्रीम बिग, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। भाई लोगों, ये जो मैजिक है ना, ये ताश के पत्तों में अच्छा लगता है, लेकिन मैजिक क्रिएट करना पड़ता है। और वो मैजिक आप एक दिन में नहीं कर पाओगे, आप शॉर्टकट नहीं ले पाओगे। शॉर्टकट करोगे तो मैजिक नहीं क्रिएट कर पाओगे।
मैजिक का मतलब है मेहनत और लगन, सैक्रिफाइस, डिटर्मिनेशन। हार मत मारना। जिस दिन दूसरा यही चाहता है कि तुम हार मानो। दुश्मन हमेशा यही चाहता है कि तुम हार मानो। लेकिन जब दुश्मन को मालूम पड़ेगा ना कि वो तुम्हें जितनी बार भी गिराएगा और तुम उतनी बार उठोगे, तो दुश्मन भी कतराएगा। ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਨੱਪਦੇ ਕਿੱਲੀ, सुबह जलंधर शाम ਨੂੰ दिल्ली। तो फिर वर्ल्ड कप जीते युवराज सिंह, मैन ऑफ द सीरीज, 4 मैन ऑफ द मैच, 1 ट्रॉफी मैन ऑफ द सीरीज। सडनली फ्रॉम लो टू हाई, यहां से यहां। I was on top of my world. I was 29 years old. I was peak of my career. It was a dream. Love you too, brother. उसके बाद खांसी बहुत हो रही थी। हमारा 4 महीने का इंग्लैंड का टूर था, तो डॉक्टर ने बोला बहुत खांस रहे हो, एक बार अपना स्कैन करा लो। मैंने कहा स्कैन वैन क्या करना है, खून ही आ रहा है मुंह से, क्या हो गया, खेलना है इंडिया के लिए जाके। अगर जवान गोली खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते खून की उल्टियों के साथ। क्यों भाई, अगर हमारे जवान गोली खा सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेलते खून की उल्टियों के साथ। वो हमारे लिए गोलियां खा रहे हैं, हम तो उनके लिए बॉल ही खा रहे हैं। बॉल लगेगी छाती पे, नील पड़ेगा, सर पे लगेगी, ठीक हो जाएगा, पर गोली लगेगी तो कोई गारंटी नहीं है। सो आवर सोल्जर्स आर आवर रियल लाइफ हीरोज, ऑलवेज रिमेंबर दैट। आज हम एक अच्छे एनवायरनमेंट में, अच्छी सोसाइटी में इसलिए घूमते हैं बिकॉज हमारी आर्मी, हमारे सोल्जर। ये बात कभी मत भूलना। तो मुझे भी लगा मैं भी एक सोल्जर हूँ इंडिया का। थोड़ा कम काम कर रहा हूँ बट कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने बोला अपना पेट का टेस्ट करा लो। तो मैंने कहा कर लो। तो पेट वेट के टेस्ट कराए, सब ठीक। तो मैं जा रहा था तो डॉक्टर साहब ने बोला यार तुम खांस बहुत रहे हो, अपने एक चेस्ट का स्कैन करा लो। तो मैंने कहा वो किस लिए, मैं ठीक हूँ। उसने कहा नहीं, एक बार तुम बहुत खांसी कर रहे हो, तुम स्कैन करा लो। मैं कहा चलो ठीक है स्कैन करा लो। स्कैन किया, एक्सरे जब बाहर आया तो मैं बाहर बैठा था रेडी टू गो, गेट अप कि मुझे 4 महीने के टूर पे जाना है। सौरव गांगुली अभी रिटायर हुए हैं और मुझे टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलेगा। 7 साल से मैं बाहर बैठा हुआ हूँ, मुझे अंदर बाहर अब पहली बार मौका मिलने वाला है, तो ये मौका मैंने छोड़ना नहीं है, जान जाए तो जाए।
थोड़ी थोड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, बट पैशन पैशन होना चाहिए काम में। पैशन इतना हो कि बंदा के यार ये बंदा नहीं टूटेगा, इसके सामने तो हारना पड़ेगा, ऐसा पैशन होना चाहिए काम में। उसके बाद डॉक्टर साहब आए बड़ी गंभीर समस्या में, कहते अंदर आइए कमरे में। मैं अंदर गया कमरे में, मैं कहा हाँ जी बोलिए। कहता है स्कैन देखिए अपना। तो 2 लंग्स के स्कैन थे, तो लंग्स दिखते हैं, तो एक लंग के ऊपर ना बिल्कुल वाइट बिल्कुल वाइट लंग बिल्कुल नज़र नहीं आया, एकदम वाइट। अब मुझे तो स्कैन देखने आते नहीं है, तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, मैं कहा एक तरफ तो ये ब्लैक एंड वाइट है और दूसरी तरफ, कहता है आपके लेफ्ट लंग के ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, आपको बायोप्सी करानी पड़ेगी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब सीरियसली बताइए प्रॉब्लम क्या है। तो डॉक्टर सेड कि मुझे लगता है आपके लेफ्ट लंग के ऊपर शायद कोई ट्यूमर है। मैंने कहा ओ डॉक्टर डॉक्टर साहब मैं एक एथलीट हूँ, ठीक है, मैं दिन में 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, मेरा बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल है, मैं अच्छा खाता हूँ, मैं अच्छा पीता हूँ, मैं अच्छा सोता हूँ, मुझे कोई ट्यूमर नहीं हो सकता, समझे आप। तो ऑब्वियसली आर्गुमेंट हुआ, तो उसने बोला नहीं आई थिंक यू शुड गेट अ बायोप्सी डन। तो मैं हॉस्पिटल से चला गया ये सोचकर कि जब ऐसी कोई दुर्घटना आती है तो आप वो दुर्घटना से भागते हो, तो दुर्घटना से भागने के लिए आप अपने आप को कुछ भी बोलते हो और अपने आप को कन्विंस करने के लिए आप कुछ भी समझ लेते हो, लेकिन एंड ऑफ द है तो इंसान ही ना। हम सब एक ही तरह बने हुए हैं, वही दिल, वही दिमाग, वही सर, वही पैर। वो चीज़ रियलाइज़ करने में मुझे उसके बाद 1 साल लगा। एनीवेज उन्होंने मेरी मदर को फ़ोन किया, मदर को बोला, मेरी मदर तो वैसे ही 24 घंटे मेरे बारे में ध्यान रहता उनका। बायोप्सी कराने गए, बायोप्सी कराई, बायोप्सी की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर सेड इट्स अ ट्यूमर, योर सन हैज़ कैंसर। मैंने कहा ओ डॉक्टर झूठ बोल रहा है। ऐसे मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं है, मैं खेलने आ रहा हूँ। एनीवेज मैं झूठ बोल के टूर पे चला गया खेलने, और इंग्लैंड टूर पे मैं खेल रहा था और हालत और ख़राब होती गई। मेरी मैच में उंगली टूट गई तो मुझे वापस आना पड़ा, जो कि एक्चुअली बहुत अच्छा हुआ। तो उसके बाद मैंने बड़े अलग अलग इलाज कराए, एक्वापंचर, ये थेरेपी, वो थेरेपी, कि मतलब ट्यूमर चला जाएगा, कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ ट्यूमर, क्या है, मुझे खेलना है। फिर उसके बाद खेल नहीं पा रहा था अच्छे से। तो हमारा एक डॉक्टर है फैमिली डॉक्टर, उनको एक्चुअली रिपोर्ट्स गई और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्हें बोला युवराज सिंह तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया। उसने बोला कि बेटा आपको कुछ कैंसर की कुछ टर्मिनोलॉजी बोली, आपके पास सिर्फ 3 से 6 महीने बचे हैं। मैंने कहा ओ डॉक्टर
मैंने कहा डॉक्टर रिलैक्स, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। इन डॉक्टरों को कुछ नहीं पता, मतलब वो मेरा बोलने का डॉक्टरों को पता है, बट मैं ये सोच रहा था इसको कुछ नहीं पता। ऑस्ट्रेलिया का टूर था, मैं टूर पे जाने की तैयारी कर रहा था थिंकिंग के आई एम एब्सोल्युटली फाइन। एंड हमारे वहाँ पर मेरे करीब दोस्त आशीष कौशिक जो कि इंडियन टीम के फिजियो रह चुके, उन्होंने बोल दिया सिलेक्टर्स को कि नहीं, ही इज़ नॉट गोइंग ऑन अ टूर, ही हैज़ टू गो फॉर हिज ट्रीटमेंट। तो मैंने गुस्से में अपना बैग उठाया और मैं चला आया। और हमारे हमारे गुरु जी हैं जिनके पास हम 15-20 साल से जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि बेटा अगर आप ठीक हो गए तो आप अंग्रेज़ी दवाइयों से ठीक हो गए। तो मुझे एक्चुअली 1 साल लगा एक्सेप्ट करने में कि मेरे को कैंसर है। एंड उसके बाद ऑब्वियसली मैं अमेरिका गया अपना इलाज कराने, बट वो 1 साल में मेरी पूरी दुनिया बदल गई। यहाँ से यहाँ और वहाँ से फिर नीचे। तो एनीवेज अमेरिका में इलाज कराने गया, पर मुझे पता था कि यहाँ पे इलाज कराऊंगा तो सारा टाइम मैं न्यूज़ में रहूँगा और मैं नहीं चाहता था वो। इलाज कराया, डॉक्टर के पास बैठे और डॉक्टर ने बोला कि आपको ये कीमोथेरेपी, जो कैंसर का इलाज होता है, आपको कीमोथेरेपी के फॉर्म पर साइन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ जी दिखाओ। उन्होंने बोला कि ये दवाई से लिवर फेलियर हो सकता है, ये दवाई से किडनी फेलियर हो सकता है, ये दवाई से हार्ट फेलियर हो सकता है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कोई अच्छी चीज़ भी होती है कीमोथेरेपी से? तो डॉक्टर सेड this one drug over here, after this you will not be able to hear women and little babies talking. मैंने कहा हाँ ये हुई ना बात। हाँ, छोटे बच्चों और जो लेडीज़ बोलेंगी उनकी आवाज़ मुझे सुनने में तकलीफ़ होगी। तो it was a fun moment, but again not coming to terms के मुझे ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। Anyways, I went through chemotherapy. I struggled a lot. I can't really say कि क्या ट्रीटमेंट था, कितनी कठिनाइयों से मैं गुज़रा। लेकिन मैं थोड़ी मैंने एक्सरसाइज शुरू की, लेकिन मैं वीक हो गया। मेरी बॉडी, वहाँ पर कुछ बच्चे व्हील चेयर पे थे, तो मैंने कहा व्हील चेयर पे नहीं बैठूँगा, जितना मर्जी बीमार हो जाऊँ व्हील चेयर पे नहीं बैठूँगा। लेकिन इवेंचुअली तीसरे साइकिल के बाद व्हील चेयर पे बैठना पड़ा। बीच में मेरे दोस्त आए और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि इनको शाम को वॉक के लिए ज़रूर लेके जाया करो, लेकिन हालत इतनी ख़राब थी उठने को नहीं होता था। तो उसी टाइम में मेरे एक दोस्त ने मुझे टेबल टेनिस में चैलेंज किया। तो मेरे को बोला कि अगर तू टेबल टेनिस में मुझे हरा देगा, तो मैंने कहा भाई मैं हरा देगा क्या, मैं तो खड़े होकर चल नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या कैसे मतलब। तो उसने मजाक में बोल दिया चल अगर तूने मुझे हरा दिया तो मैं तुझे $100 दूंगा। तो मेरी एकदम से जाग खुल गई। मैं कहा अच्छा ठीक है। हम खेलने गए, हमने पहली गेम हारा, दूसरी गेम हारा, तीसरी गेम हारा, और शरीर में इतना दर्द था कि कुछ हिल ही नहीं पाया। लेकिन मैंने कहा यार हार के तो मैं नहीं जाऊंगा। तो मैंने उसको अगली 3 गेम हरा दी। हार नहीं माननी।
उसके बाद मेरे एक और दोस्त ने एक पूल टेबल की गेम पे मेरे से शर्त लगाई $100 की, तो मैंने फिर उसको हरा दिया और फिर $100 लिए। मैं कहा हार नहीं माननी। उसके बाद बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए। बॉडी वॉज ऑलमोस्ट फिनिश्ड, आई वॉज ऑन अ व्हील चेयर स्ट्रगलिंग टू वॉक, बट जब भी अपने वीडियोस देखता था, मेरे को वहाँ पर बहुत लोग मिलने आए। अनिल कुंबले आए, तेंदुलकर आए, मेरे बहुत से अजीज दोस्त आए। लोगों ने बहुत दुआएं की मेरे लिए, आप लोगों ने बहुत दुआएं की टू बाउंस बैक। आई फील के दवा से बड़ी दुआ होती है। हमारे गुरुजी हमेशा कहते गरीबों को खाना खिलाओ और वो तुम्हें दुआ देंगे, और दुआ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। तो आप लोग कभी कहीं जा रहे होगे, आपको कोई गरीब मिलेगा, उसे कभी खाना खिलाना और उसे पूछना कि उसको कैसा फील हो रहा है। तो वो जब अपनी फीलिंग बताएगा ना तुम्हें, उससे अच्छी फीलिंग तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ट्राई करके देखना। एनीवेज, उसके बाद मैं वापस आया। आई थिंक मैं उस दौरान मेरे मदर मेरे साथ थे, और उन्होंने दूसरी बार मुझे जन्म दिया। और कमाल की स्टोरी है। अपनी स्टोरी को कमाल बोल रहा हूँ मैं। लेकिन जब मैं आई वॉज गोइंग थ्रू दैट मोमेंट, आई ऑलवेज थॉट कि मैं वापस आके इंडिया के लिए ज़रूर खेलूँगा। तो डॉक्टर्स ने बोला आप अगर बच गए तो 2 साल के बाद, मे बी 2 या 3 साल के बाद यू कैन स्टार्ट प्लेइंग अगेन। सेकेंड साइकिल के बाद मेरे लंग्स ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गए थे, और आई हैड टू द डॉक्टर्स हैड टू चेंज माई मेडिसिन। के अगर इनकी मेडिसिन चेंज नहीं की तो इनकी लंग्स बिल्कुल के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो आई रिमेंबर मेरी मेडिसिन चेंज हुई, और उसके बाद ये डिसीजन लिया डॉक्टर्स ने इंडिया में जो मुझे बोला गया था कि आप 2 साल तक, अभी 2-3 साल तक आप यू हैव टू रिकवर। मतलब यू माइट रिकवर इन 6 months 1 year, बट आपको 2-3 साल अभी लगेंगे। मैंने कहा ओए डॉक्टर, डॉक्टर को क्या पता है। मतलब मेरा ओपिनियन है, ऑब्वियसली डॉक्टर्स नो व्हाट ही इज डूइंग द राइट जॉब। 6 महीने में मैं आके इंडिया के लिए दोबारा खेला। भाई लोगों, अपनी जिंदगी की लकीर खुद लिखो। अपनी लाइन, हाथ की लाइन किसी और के हाथ में मत दो। इसका मतलब अपना रास्ता खुद ढूंढो। एनीवेज, 6 महीने में इंडिया खेला, स्ट्रगल किया, बॉडी वैसी नहीं थी। फेलियर्स आफ्टर फेलियर्स। लाइफ हैड बिकम अबाउट फेलियर्स, बिकॉज सबने बोला अभी क्रिकेट करियर ख़त्म है, अभी बॉडी वो नहीं रही। तो स्ट्रगलिंग। श्रीलंका में एक T20 वर्ल्ड कप हुआ। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में युवराज सिंह ने 11 रन बनाए 21 बॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में। वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ माई क्रिकेट करियर। अनफॉर्चुनेटली वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में आई श्रीलंका में।
Probably the worst moment of my cricketing career. और वो एक ऐसा टाइम था जब मैं बांग्लादेश से बाहर निकल रहा था, तो जो लोकल्स, जो ऑफिशियल्स थे, जो मेरे दोस्त बने हुए थे इतने सालों से, उन्होंने मुझे बोला, मैंने कहा सर मेरा बैग देना। कहता हट, तुमसे बात नहीं करनी, नाक कटवा दी हिंदुस्तान की तुमने। तो हमने अपना बैग लिया और चल दिए। इंडिया वापस आए, बहुत सारी मीडिया बाहर थी, बड़े तरह के सवाल पूछे गए मेरे से। अगले दिन पेपर में, न्यूज़ में, हर जगह इट वाज लाइक क्रिकेट करियर ख़त्म, वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ हिज लाइफ, ही इज़ ओवर प्रीटी मच। और मैं भी इतना डेवस्टेटेड था, मुझे भी लगा कि शायद आई थिंक माई करियर इज़ ओवर। तो मैं वापस घर आया, तो मेरे घर में 2 बैट लगे हुए हैं। एक 6 छक्कों वाला बैट है और एक वर्ल्ड कप 2011 मैन ऑफ द सीरीज़ का बैट है। तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने कहा कि लगता है यही मेरी अचीवमेंट है। तो मैंने अपनी इंडिया की कैप निकाली बैग से और बैट्स के ऊपर रख दी। मैंने सोचा फिर दिस इज़ इट, यही थी मेरी मंजिल। एनीवेज, उसके बाद थोड़े लोगों ने सपोर्ट किया, इट्स अबाउट मैटर ऑफ वन गेम एंड स्टफ। थोड़े महीने मैंने अपने आप को वापस लाने में लगाए और काम शुरू किया चैरिटी का। मैं चाहता था कि कैंसर से मैं गुजरा हूँ, मैं वापस जाके अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करूँ। तो उन दौरान मुझे टाइम मिला कि मैं लोगों की मदद करूँ जिन लोगों को कैंसर हुआ है। एक तरीका था, हम अपने बारे में सोचते हैं, अपने करियर के बारे में, बट वो एक टाइम था जब मैं दूसरों के बारे में सोच सकता था कि मेरे अलावा इतने लोग जिनको कैंसर होता है, उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। चैरिटी खोली हमने, बहुत से यूवी कैन के नाम से चैरिटी खोली। यूवी कैन का मतलब, हमारे दिमाग में नाम आया यूवी कैन, क्योंकि यूवी एक जो मेरा नाम है, यू वी कैन मतलब टुगेदर, हम इकट्ठे मिलके वी कैन फाइट कैंसर। तो इस सेंस से वो नाम आया। तो बहुत सी डिटेक्शंस की, बहुत से लोग, गरीब लोग ट्रीटमेंट नहीं करवा पाए बिकॉज कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। तो बहुत लोगों से बात की, तो हम अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम काफ़ी लोगों का इलाज कर पाए। तो हमने 25 बच्चे जिनको कैंसर हुआ था और माँ बाप ने उनके इलाज के लिए सब पैसा खर्च दिया था, तो हमने वो 25 बच्चों के लिए उनकी स्पॉन्सरशिप देनी शुरू की स्कूल की। तो हमारा ये छोटा प्लान था। आज की डेट में हमारे पास 50 बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन हम संभालते हैं, जो कैंसर से वापस आए। और पिछले महीने हमने 6 बच्चों का इलाज कराया यूवी कैन फाउंडेशन से। तो आई थिंक लाइफ में मुझे एक मोटिव मिला काम करने के लिए कि मैं अपनी सोसाइटी और लोगों के लिए कुछ कर सकूं। आई थिंक दैट वाज माय लर्निंग इन लाइफ कि अपने लिए तो बहुत कर लिया, अब लोगों के लिए कुछ करना है। सो आई थिंक आप भी लोग जिस दिन एक मकाम पे पहुंचेंगे और पहुंचे हुए हैं, आप भी ज़रूर किसी की मदद करिए।
अच्छा लगेगा। ओह, उसके बाद खेलना चालू किया दोबारा। तेंदुलकर ने मुझे बोला कि कहता एक मैच तेरा करियर नहीं डिफाइन कर सकता लाइफ का, सो स्टार्ट अगेन। खेलना चालू किया। आई वॉज अबाउट 33, 34। डोमेस्टिक खेली। डोमेस्टिक में काफ़ी रन बनाए उस साल, और उसके बाद इंडियन टीम में फिर से नाम आया। डेढ़ दो साल बाद T20 में नाम आया। ऑस्ट्रेलिया गए खेलने, तो ऑब्वियसली बिकॉज उसके पहले सबकी लोगों में वो याददाश्त ताज़ी थी कि लास्ट मैच जो इंडिया हारी वो युवराज ने ख़राब खेला उसके करके हारी। पहले 2 मैच में बैटिंग नहीं आई क्योंकि उस दौरान अभी भी विराट उस दिन बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, विराट और रोहित। और तीसरे मैच में बैटिंग आई जब को हमको लास्ट 3 या 4 ओवर में कोई 40 रन बनाने थे। तो लास्ट ओवर पहले कोई 5 बॉल में सिर्फ 9 ही रन बने मेरे से, और ऑब्वियसली माहौल कुछ ऐसा बन गया था कि यार आई थिंक ये बंदा तो ख़त्म है, इसको गलत ले आया टीम में। लास्ट ओवर में 17 रन चाहिए थे। पहली बॉल चौका और दूसरी बॉल छक्का। फिर आई थिंक रैना ने, हमने 2 डबल लिए और रैना लास्ट बॉल पे बाउंड्री मारी, हम वो मैच जीत गए। और लोगों का परसेप्शन वापस चेंज, यूवी इज बैक। तो लाइव कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। उसके बाद फिर जाके वापस खेला, फिर बहुत से रन बनाए डोमेस्टिक में। फिर उसके 1 साल बाद फिर वनडे क्रिकेट में 3 साल बाद वापसी हुई, जबकि सबने बोल दिया था कि ये कभी वापसी कर नहीं पाएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में 5 मैच में कुछ 800 रन बनाए, उसके बाद वापसी हुई। और पहला मैच इंग्लैंड के साथ, दूसरा मैच इंग्लैंड के साथ मैंने बनाए 150 रन्स, जो मेरे वनडे क्रिकेट का बेस्ट स्कोर था। जब सबने बोल दिया था कि इसका करियर ख़त्म है, उसके बाद आके मैंने अपना हाईएस्ट वनडे स्कोर बनाया। क्योंकि कभी हार नहीं मानी। अपनी लकीर खुद लिखो। समझ आई मेरी बात? दुनिया जो बोलेगी बोलने दो, अपनी लकीर खुद लिखो। खेला, उसके बाद थोड़ा और अच्छा परफॉर्म किया इंडिया के लिए। इंजरी हो गई मेरे, वापस चोट लग गई और मैं इंडियन टीम से ड्रॉप हो गया। फिटनेस क्रिकेट के युवराज सिंह, अभी उनकी एज हो गई है, वो इतने फिट नहीं है अभी। करियर ख़त्म, अभी ऑलमोस्ट
कि दिस इज़ इट। पिछले साल की बात है। तो मैंने कहा डोंट गिव अप। खेला, डोमेस्टिक खेला, अपना टेस्ट पास किया और शादी हुई। आई फील कि बड़े सही टाइम पे शादी हुई जब मुझे एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत थी और बस लकीली मुझे सही पार्टनर मिला। सही पार्टनर मिलता है तो लाइफ चेंज हो जाएगी, गलत पार्टनर मिल गया तो भी लाइफ चेंज हो जाएगी। एनीवेज, लास्ट ईयर मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने रन नहीं बनाया, मेरा साल बहुत ख़राब गया और मैं आईपीएल से भी ड्रॉप हो गया और pretty मच लोगों ने अब कांटा मार दिया है कि इसका करियर ख़त्म। तो 99.9% ऑड्स मेरे अगेंस्ट हैं। मतलब एवरीथिंग इज़ अगेंस्ट मी राइट नाउ। 2019 में वर्ल्ड कप है, यंग लड़के अच्छा कर रहे हैं और 99.9% लोगों का बिलीफ है कि ऑब्वियसली ही इज़ फिनिश्ड, ही इज़ डन। बट तो बेसिकली जो 0.1% लोग हैं वो आज यहाँ पर है, कह रहे नहीं यूवी तुम खेल सकते हो। Yuvraj, if I can say something. I think the magic believes. I think we believe because we also have been challenged. We also have been raised fingers. We also have been doubted. We also have been told कि कुछ नहीं हो सकता। और आज ये 12,000 लोगों का विश्वास है कि अगर हम हैं और आप हैं, so together we can and we will. We will. I don't know about anyone, but this is from my heart to you. And I'm being honest to tell that I think you are the best, and the reason why India was able to get the World Cup and back after 22 years was Yuvraj Singh. He is the one person who fought, who actually did his best. And we have it
after 22 years only because of you. And we believe in you. Each person standing here believes in you and loves you. And thank you so much for making them believe कि गिरता है तो उठता है और गिरता है तो उठता है, because हर इंसान जो उठता है वो गिर के ही उठता है. And I remember long back I heard this line from none other than Sachin Tendulkar when he got hurt at a very young age. On the pitch he said, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा और मैं खेलेगा. And I know and we know that you have been a fighter. You have been a person who has challenged everything that has come in front of you, because each one of them have done the same. And thank you so much for giving the belief back, Yuvraj. Magic loves you. And Magic believes in you because you believed in us. And we are blessed to have you here. We are privileged to have you here. And each one of them are showing that love to you today. From India, from Nepal, from Thailand, from Dubai, from all over the world. Why India alone? Everywhere. Everybody loves you. Everybody wants to be with like you. Give your loudest and thunderous applause. Give your best heart to the challenger, to the warrior, to the person who believes in the power of giving. None other than Yuvraj Singh. Guys, Yuvraj Singh for Magic 2018. One last time. Give him your best. Give him your love. Give him your prayers. And like he said, दुआओं से बड़ी कुछ नहीं होता. And 12,000 people की दुआ इस दिल से उस दिल तक और उस दिल से आपके दिल तक पहुंचेगी आज. Indian cricket team is proud to have Yuvraj Singh. Magic 2018 is blessed to have Yuvraj Singh with us. And if I can request you to show him that love which we learned from our founders, is that one love without making a single sound. Without making a single sound, the love from your heart, which we learned from our Dato Shri Vijay Ishwaran. No sound, only the love, only the love, only because when you don't talk and your heart talks, that's the best way of giving our feelings. So Magic, one time before I bring him up from stage, give your love to Yuvraj Singh.
You win! 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 Guys, none other than, once again, Yuvraj Singh in Magic 2018 for you.